Hello students. Yesterday I taught you meaning of management and meaning of effectiveness and efficiency from chapter 1st of business studies. Today I am going to teach you features of management. This is third lecture. Students, as you've seen in this video, so many features of management. First is management is goal oriented process. Students, management always focus on achieving the organizational goal. In every organization, various departments exist, just like production department, financing departments, sales departments, HR department, etc. And various peoples are working there, but management bind the efforts of all people towards achieving common goals, that is organizational goal. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का जो फोकस होता है हमेशा अपने गोल को अचीव करने पर होता है, विच आर सेटअप बाय द आपका मैनेजमेंट, जो पहले से ही मैनेजमेंट ने सेट किया होता है. ओके, सो मैनेजमेंट कॉल्ड द आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नाउ सेकंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव. Pervasive means applicable at everywhere. Okay, students, listen carefully. Management is pervasive and it is applicable in every type of organization, whether it is profit making or whether it is manufacturing or uh, it is non-profit making also. Any type of organization, the management is required, because without management not doing the activities in right way, so management is pervasive. It's clear, students? Now third is management is multidimensional. Students, meaning is multidimensional means वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि मैनेजमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, नॉट ओनली सिंगल वर्क. ओनली वो सिंगल एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करता, बट वेरियस एक्टिविटीज को एक साथ परफॉर्म करता है. सो इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल. लिसन बेटा, द मैनेजमेंट हैज थ्री मेन एक्टिविटीज. फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, second is management of people, and third is management of operation. These are the three activities which are conduct, which are performing, which are comes under multidimensional topic. Firstly, I am explaining management of work. As you know, students, in organization, in every organization, some work are set up, some work for some work every type of organization are set up. मतलब किसी ना किसी काम के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड टू अचीव सम गोल्स, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया जाता है. जैसे एग्जांपल, टू सेटअप द स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन. अनदर एग्जांपल, to set up the hospital to treatment of patient, etc. तो स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी वर्क के लिए सेटअप की जाती है. उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई वर्क होता है और उसका एक गोल्स होता है जिसको अचीव करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है. सेकेंड इसी का टॉपिक है बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ पीपल.
As you know, in every organization there are various departments are working, just like production department, sales department, financing department, etc. And various peoples are working there. So so this is the task of management, ki all the efforts of all those pupils who are working in the organization bind up or together in one thread and टूवर्ड्स द अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि उन सारे पीपल के वर्क को एक साथ बाइंड अप करके, एक साथ कह लीजिएगा थ्रेडिंग करके उस सारी एक्टिविटीज को टूवर्ड्स करते हैं, पुशिंग करते हैं टूवर्ड द आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सो दैट ए ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव योर गोल्स और एम. थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स स्टार्ट द वर्क. स्टूडेंट्स, जब तक सुपीरियर पर्सन्स अपने एम्प्लॉयज़ को किसी भी वर्क को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर नहीं देगा, तब तक कोई भी एम्प्लॉयज़ अपने उस वर्क को नहीं करेगा जो वर्क उसको असाइन कराया गया. तो इन दिस टॉपिक बच्चों क्लियरली समझना है कि दिस इज मिक्सिंग द मैनेजमेंट. इस टॉपिक में मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि वर्क और पीपल, जो भी दो पॉइंट मैंने समझाए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, इन दोनों का मिक्सअप है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. बिकॉज इन दिस टॉपिक ए मैनेजमेंट डिसाइडिंग कि व्हाट वर्क हैज टू बी डन, कौन सा वर्क होना है, एंड हु एंड हाउ इट हैज टू बी डन, इस वर्क को कैसे करना है, एंड हु विल डू इट, और इसको कौन करेगा. तो ये सारी चीज़ें मैनेज होता है थर्ड पॉइंट यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. इट्स क्लियर स्टूडेंट्स कि मैनेजमेंट वेरियस टाइप की एक्टिविटीज करता है, सो इट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट नेवर एंडिंग. इट इज carry on continuously, because suppose one goal is achieved by the organization, then second goal is set up by the management, and for set up the second goal, for set up the आपका another objectives, the management or organization required the आपका planning, deciding, and these planning and deciding are carry on in continuously in the organization. So management is never ending and it continues from deciding यानी कि planning function and it ends to the आपका controlling function. It's clear स्टूडेंट्स कि प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस है. प्लानिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सॉरी मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मैनेजमेंट कभी एंड नहीं होता. ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी. एज यू नो स्टूडेंट कि फॉर ए सिंगल ह्यूमन बीइंग नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट. Management is required there where various peoples are working there, because various people works according to their habits, according to their way, according to आपका अपने अपने तरीके से वर्क करते हैं बेटा. अगर सभी लोग अपने अपने तरीके से वर्क करेंगे इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल होगा कि उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपना जो टारगेट है, जो उसका एक एम है, जो उसका एक लक्ष्य है, उसको अचीव नहीं कर पाएगा. सो मैनेजमेंट यानी कि जो मैनेजर्स हैं उन सब प्यूपिल्स के वर्क को यूनाइटेड मीन्स उसको बाइंड अप करता है, बाइंड अप करके एक कॉमन गोल्स की तरफ उसको पुशिंग करता है, ताकि मैनेजमेंट के हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन अपने उस गोल को अचीव कर सके. सो मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, बिकॉज मैनेजमेंट अप्लाइड होता है वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सम नंबर ऑफ पीपल या लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर, नॉट ए सिंगल पीपल. सिंगल पीपल के लिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सेकेंड लास्ट इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट डायनेमिक मीन्स वेन एवर वी रिक्वायर्ड वी कैन चेंज इट, कि यदि हमें रिक्वायरमेंट है चेंज करने का तो उसको कर सकते हैं.
Students, listen clearly. कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है मैनेजमेंट. If any change take place in the business environment, then organization can adopt it without any problem. Management also change in the आपका organization inside. Suppose, for example, there is an example कि if government policy is changed, then according to government policy, business or organization has also make the आपका plan, ठीक है, to achieve their goals. So management is dynamic function. And last is management is intangible. As you know student, the meaning of intangible, that is not seenable, not visible. Okay. तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है बेटा, इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, हम इसको अनुभव कर सकते हैं. इफ द ऑर्गेनाइजेशन continuously achieving your goal at prescribed time and day to day increase और आपका earning profit, तो it assume that कि that organization management is very good. ओके बेटा. तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल होता है, इसको ना तो हम छू सकते हैं ना इसको हम देख सकते हैं, बट फील कर सकते हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ मैनेजमेंट और विद द अर्निंग रेट या अर्निंग ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके स्टूडेंट्स,